آج ہم آپ کو ایک عاشق فقیر کی داستان سنائیں گے کہ کیسے اس کے پختہ یقین نے اسے منزل تک پہنچایا۔ اس دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ شہزادی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں۔ محل میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ السلام علیکم دوستو، آج دیکھیں گے ایک عشق کی کہانی، ایک فقیر کے عشق اور ایک محل کی شہزادی۔ فقیر جب محل کے شہزادی کو دیکھتا ہے تو فقیر اپنے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پانے کی لاکھوں کوششیں کرتا ہے۔ طرح طرح کے ان کے خواہش جو وہ وزیر بتاتے ہیں ان کے خواہش کو پورے کرتا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ ان کی دعا کو سنتا ہے اور وہ خواہش کو پورا کرتا ہے۔ شہزادے کی موت ہو جاتی ہے، پھر وہ فقیر قبر سے ان کو نکال کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ ان کو جان دے دیتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے اتنے خوبصورت واقعہ، یہ اسٹوری بنایا ہوا ہے ایک فقیر اور ایک محل کے شہزادے کے عشق کے بارے میں ہے۔ چلیے بنا ٹائم پاس کیے ہوئے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کا شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما میں لوگ بلک کا رخ کرتے تھے۔ یہ جشن بہارا کے دن تھے۔ وہاں سے ایک کارواں گزر رہا تھا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ بہار کے بعد جب سب لوگ بلک سے واپس اپنے اپنے مسکن کی طرف رواں دواں تھے، لیکن وہ نوجوان بلک میں ہی رہا۔ اسے اس شہر میں اپنے لیے سکون ملا۔ اس نے یہاں پر جھاڑیوں میں اپنے لیے ایک کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے لگا۔ وہ وہیں بھٹکتا پھرتا۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ فقیر شہر کی گشت سے واپس لوٹ رہا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ کچھ اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے لیے وہ باغ میں چلا گیا۔ اسے وہاں کچھ آواز آئی۔ اس نے وہاں موجود شخص نے کہا، تم جہاں سے بھی آئے ہو واپس لوٹ جاؤ۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آج سلطان برق کی شہزادی یہاں گشت کے لیے تشریف لائی ہے۔ فقیر نے جب شہزادی کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی۔ فقیر شہزادی سے اس قدر متاثر ہوا کہ ساری رات سو نہیں سکا۔ اس کے دل میں شہزادی کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ وہ شہزادی کے عشق میں بے حال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بلک کا دربار لگا ہوا تھا۔ لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ بادشاہ کو اس کے غلام نے آ کر خبر دی کہ ایک فقیر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے اندر آنے کا حکم دیا۔ جب دربار ختم ہونے کو تھا تو بادشاہ نے اس فقیر سے پوچھا، تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے کہا، میں ایک ایسی فریاد لے کر آیا ہوں جو اس بھری محفل میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تنہائی کا موقع دیں، میں آپ کو اس وقت اپنی خواہش بتاؤں گا۔ جب دربار ختم ہو گیا تو اسے بلایا گیا۔ وزیر نے پوچھا کہ تم بادشاہ کے سامنے کیا فریاد کرنے لگے ہو؟ فقیر نے کہا، میں شہزادی سے نکاح کی خواہش لے کر آیا ہوں۔ وزیر نے جب یہ سنا تو فقیر کو حقارت سے کہا، کیا تم نے خود کو دیکھا ہے؟ کس منہ سے سلطنت کی شہزادی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ بادشاہ نے وزیر کو خاموش کرواتے ہوئے کہا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہمارے دین میں ہر کسی کو نکاح کی اجازت ہے، چاہے وہ امیر ہو یا پھر غریب۔ اس کا جواب حقارت کے ذریعے نہیں بلکہ مہذب طریقے سے دیا جائے گا۔ بادشاہ نے فقیر کو کہا، تمہیں تمہاری درخواست کا جواب ایک ہفتے کے بعد مل جائے گا۔ فقیر کے دل میں یہ سن کر امید کی کرن جاگی، لیکن ایک ہفتے کا عرصہ اسے بہت زیادہ لگنے لگا۔ بادشاہ نے اس دوران وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا اور کہا، فقیر کو فوراً انکار نہ کیا جائے بلکہ بہت تدبیر کے ساتھ انکار کرنا، یا تو اس کے آگے ایک ایسی شرط رکھ دی جائے جو وہ پوری نہ کر سکے۔ ایک ہفتے کے بعد جب فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے انتہائی ادب سے اس کا خیر مقدم کیا اور کہا، شہزادی کے لیے بہت سارے نامور لوگوں کے رشتے آئے، تمہارا نام بھی انہی لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ یہ سن کر فقیر کے دل میں کرن کی لہر دوڑی اور اس نے کہا، کیا حکم ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کے لیے ایک سیاہ رنگ کا ہیرا لے کر آؤ۔ فقیر نے کہا، بے شک یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ سنا ہے کہ سیاہ ہیرا برفیلی پہاڑیوں میں موجود ایک سیاہ پہاڑی پر ہوتا ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ رات بھر وہ فقیر اللہ کے آگے اپنی فریاد لیے روتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں اللہ کی طرف سے امید کی کرن جاگی۔ وہ اپنا سامان لیے نکل پڑا۔ اسے سیاہ ہیرے کی تلاش تھی۔ کوہسار کی وادیوں کو تاریکی نے جکڑ لیا، مگر وہ چلتا رہا۔ وہاں وہ ایک چٹان پر بیٹھ گیا اور درندوں کی آوازوں میں اس کی رات بسر ہوئی۔ صبح کوئی شخص اسے شانے سے ہلا کر اٹھا رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تھا جو کہہ رہا تھا،
बेटे, ये बैठने का वक्त नहीं है, एक चट्टान टूट के गिर गई है, तुम अपने निकलने के लिए रास्ता बनाओ वरना शाम तक यहाँ सैलाब आ जाएगा। फकीर घबरा कर उठा और चल पड़ा। उसे रास्ते में निकलते वक्त टूटी हुई चट्टान में चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। उसे न जाने ये यकीन था कि ये वही हीरा है जिसे ढूंढने के लिए वो निकला है। वो खुशी के आलम में बल्ख की तरफ रवाना हो गया। सफर में उसे कई दिन गुजर गए। जब वो बल्ख पहुंचा तो दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने कहा, तुम फिर आ गए जबकि तुम्हें बता दिया गया था। फकीर ने कहा, मैं शर्त पूरी करके आ गया हूँ। और वो स्याह चमकता हुआ हीरा बादशाह के आगे रख दिया। सब दरबारी इस मुनफरिद और नायाब हीरे को देखकर दंग रह गए। फकीर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा, मैंने शर्त पूरी कर दी है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। वजीर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम कामयाब होकर लौटे हो, लेकिन इसके बाद एक और शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी है। फकीर ये सुनकर मायूस हुआ, लेकिन उसे उसके इश्क ने हिम्मत दी। उसने हामी भर ली और पूछा, अब क्या शर्त है? वजीर ने कहा, शहजादी के कानों के आवेजों के लिए मोती दरकार है। वो मोती बहुत दिलकश और बेहद खूबसूरत रंगों का हामिल है। अगर वो तुम ले आओ तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। फकीर एक बार फिर मंजिल मकसूद की खातिर एक और इम्तिहान के लिए निकल पड़ा। अब की बार वो एक समंदर पर पहुंचा। उसके इश्क के जुनून ने ये फैसला किया कि वो अपने इन हाथों से समंदर को खाली कर देगा और मोती ढूंढ निकालेगा। ये काम करते हुए उसे बहुत दिन गुजर गए, लेकिन बेसूद। वो वहां बैठा और सर उठाकर आसमान की तरफ मुंह किया और अल्लाह से दुआ करने लगा। इतनी देर में समंदर में एक मोतियों से भरी लहर गुजरी और उसके दामन में बहुत से मोती आ गिरे। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। खुशी और तशक्कुर के इस आलम में वो दामन में भरे मोती लेकर बल्ख की तरफ वापस पलट गया। बादशाह के दरबार में पहुंचकर उसने अपने दामन में भरे सारे मोती बादशाह के आगे पेश किए, इस उम्मीद के साथ कि अब वो अपनी मंजिल पा चुका है। लेकिन वजीर ने उसके इस जुनून का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कहाँ और शहजादी कहाँ? अभी भी वक्त है कि तुम अपनी इस जुनूनियत से बाहर आ जाओ। इतनी देर में एक शहजादी दौड़ती हुई आई और कहा कि शहजादी की तबीयत खराब हो रही है, वो बेहोश होकर गिर गई हैं। महल में कोहराम बर्पा हो गया। बादशाह के पहुंचते पहुंचते शहजादी दारे फानी से कूच कर चुकी थी। हर तरफ सोग का आलम था। बादशाह पागल हो गया। पूरा बल्ख शहजादी की मौत पर सोग मना रहा था, लेकिन इस आलम में उस फकीर के चेहरे पर कोई इस्तराब मौजूद नहीं था। जब शहजादी का जनाजा उठाया गया तो वो फकीर भी उसमें शामिल हो गया। शहजादी को मनो तले मट्टी में दफना दिया गया। उसी दौरान रात हो गई और पूरा बल्ख सोगवार हालत में सो गया। लेकिन इस दौरान वो फकीर जागता रहा और अपने इश्क की खातिर शाही कब्रिस्तान में जा पहुंचा और वहां जाकर शहजादी की कब्र का बोसा लिया और कब्र की मट्टी हटाने लगा। तख्ता हटाकर वो शहजादी के बेजान जिस्म को लेकर निकल पड़ा। वो कुटिया में उसे ले गया और इंतहाई एहतराम से लेटा दिया और रो रो कर अल्लाह के आगे फरियाद करने लगा। इतनी देर में उस कुटिया में एक तबीब दाखिल हुआ। उसके साथ उसका शागिर्द भी मौजूद था। तबीब ने शहजादी के उस बेजान जिस्म को देखते हुए नफ्स पर हाथ रखा और कहा, मायूस न हो, ये अभी जिंदा है, इस पर सख्ते का आलम है। तबीब ने जंजबील की एक शीशी फकीर को दी और कहा, शहजादी के तलवों पर इसकी मालिश करो। शहजादी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने आंखें खोल दी। फकीर ये देखकर हैरान और बेहद मसरूर हुआ। शहजादी ने खुद को अजनबी माहौल में देखकर पूछा, मैं कहाँ हूँ? फकीर ने कहा, आप फिक्र न करें, आप एक महफूज पनाहगाह में हैं। इसके बाद फकीर ने तमाम दास्तान शहजादी को सुना डाली। शहजादी इस फकीर के जुनून इश्क को देखकर बहुत हैरान हुई। उस तबीब ने उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया और अपने शागिर्द को गवाह बनाया। फकीर की खुशी का कोई आलम नहीं था। वो आज खुशी से झूम रहा था। वो तशक्कुर के आलम में सजदे में गिर गया और कहा, बेशक अल्लाह तेरे बस में सब कुछ है, तुझसे कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता फकीर की खुशहाली का दौर शुरू हो गया। शहजादी ने बाहम अपने साथी शौहर का साथ दिया और खुशी से उसके साथ रहने लगी। फकीर की कुटिया महल से ज्यादा दूर नहीं थी। महल की लाडली बेटी की मौत के बाद बादशाह पहले जैसा न रहा। वो दीन की तरफ रागिब हो गया और बहुत सी मसाजिद और मदरसे तामीर करवाए। बादशाह हफ्ते में एक बार बच्चों के साथ एक महफिल मुनक्किद करवाता। बादशाह के आने पर बच्चों ने उसे सलाम किया। बादशाह की नजर एक बच्चे पर पड़ी और नजर वहीं ठहर गई। उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और मौल्लिम को बुलाकर कहा, इतना खूबसूरत और रोशन चेहरे वाला बच्चा किसका है?
میں نے तो इसे पहले कभी नहीं देखा। मौल्लिम ने कहा, हुजूर कुछ दिन पहले ही इसका बाप इसे यहाँ लाया है। बादशाह ने बच्चे को उसके बाप को साथ लाने का हुक्म दिया। जब फकीर ने ये सुना तो सारी बात शहजादी को बता दी। शहजादी परेशान हो गई। उसे महसूस हुआ कि आज सच जाहिर होने का वक्त आ चुका है। फकीर भेस बदल कर अपने बच्चे के साथ महल में दाखिल हुआ। सब इस बच्चे की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। बादशाह इस बच्चे को मलका के पास ले गया। मलका ने कहा, इस बच्चे की शक्ल हूबहू मरहूम शहजादी से मिलती है। कुछ भी हो, मुझे ये बच्चा चाहिए। बादशाह ने कहा, इस बच्चे का बाप फकीर मालूम होता है, लेकिन ये जेब नहीं देता कि हम बच्चे को उसके वालिदैन से जुदा करें। मलका ने कहा, हम इस बच्चे के साथ उसके वालिदैन को भी महल में बुला लें और उसके रहने का इंतजाम कर लें। बादशाह ने इस बात पर मलका को सराहा और बाहर जाकर फकीर को मुखातिब किया और कहा कि अगर तुम चाहो तो मलका इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है। फकीर ने कहा, इसकी माँ कभी इजाजत नहीं देगी। बादशाह ने कहा, अगर बच्चा अपने माँ बाप समेत महल में आ जाए तो सब बेहतर हो जाएगा। फकीर ने कहा, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह ने कहा, मलका तुम्हारी बीवी से खुद बात कर लेगी। मलका महल से निकली और फकीर की झोपड़ी की तरफ अपनी शाही सवारी में निकल गई। जब वो झोपड़ी के आगे रुकी तो फकीर को खबर दी गई कि मलका तुम्हारी बीवी से मिलने आई है। फकीर बौखला गया और शहजादी को जाकर बताया। उसी दौरान मलका झोपड़ी में दाखिल हो गई और देखकर सकते में रह गई और बोली, शहजादी, क्या ये तुम हो? क्या तुम मेरी बेटी हो? लेकिन मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते हैं? शहजादी ने अपनी माँ को सारी दास्तान सुना डाली। आहिस्ता आहिस्ता पूरे बल्ख में ये खबर फैल गई और हर तरफ खुशी मनाई गई। बादशाह ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समाया। उसने फकीर को गले लगा लिया और उसका महल में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह की जात पर पुख्ता यकीन हो तो अल्लाह की रजा से नामुमकिन मुमकिन में तब्दील हो सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को देखा। जब आपके अंदर इश्क जुनून हो पाने का और अल्लाह को साथ ले ले तो आप हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। हर एक चीज को अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं। हर एक चीज को पा सकते हैं। आपने देखा वजीर क्या ख्वाहिश किया इन फकीर से। फकीर से कहा सियाह हीरा चाहिए। वो इश्क में मुब्तला था और सियाह हीरा लाकर दे दिया। फिर बोला मोती चाहिए, लेकिन शहजादी को पता नहीं है। ये उनसे जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन अल्लाह इन दोनों को मिलाना चाहता था। माशा अल्लाह से लो लगाइए। इस वीडियो में यही बताया गया। अगर आप अल्लाह से लो लगाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला उस चीज को भी आपके झोली में डाल देता है जिस चीज को ना पाने की आपको उम्मीद होती है। आप देखिए, एक फकीर और एक महल की शहजादी, अल्लाह ने दोनों को कैसे मिलाया। कब्र से निकाल कर रख लिया और अल्लाह से दुआ करते रहा। अल्लाह ने उनको जान दे दिया और फिर इन दोनों का निकाह हो गया। बच्चे भी हो गए। महल में भी उनके शहजादी की माँ आई मिलने के लिए पता चल गया और पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल बन गया। अल्लाह से लो लगाए। इस वीडियो में यही हुक्म, इस वीडियो में यही बताया गया है। अल्लाह से अगर आप इश्क करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको हर एक चीज में कामयाब करते हैं और हर चीज आपके झोली में डाल देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर कर दें। मिलते हैं फिर एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।